कावेरी। कूल। कहाँ तक हमने किया था, कहाँ तक नहीं किया था? अच्छा, ये स्पेक्ट्रम जो हम कर रहे थे, ठीक है। तो बामर के केस में सेकंड तक वो गिरता है या सेकंड से कहीं पे जाता है। तो अगर वो सेकंड तक गिरेगा तो एमिशन होगा, सेकंड से कहीं जाएगा तो एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि उसके ऊपर सारे स्टेट्स जो है वो हायर स्टेट्स है। 1/λ = Rydberg constant multiplied by 1/2 square minus 1/n square, where Rydberg constant is 1.097 to 10⁻7 per meter. Cool. Other series of spectra of hydrogen was subsequently discovered and known by the name of their discoverer. The line of Balmer series found in the visible part of the spectrum. Other series were found in the invisible parts of the spectrum. तो बामर सीरीज जो है वो दिखता था, जो स्पेक्ट्रम होता था वो दिखता था, बाकी सारे इनविजिबल पार्ट्स में। फॉर एग्जांपल लाइमन सीरीज इज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन, पास्कन सीरीज ब्रैकेट फंड इन द इंफ्रारेड रीजन। ओके, तो लाइमन कहाँ तक है? 1, फिर बामर 2, पास्कन 3, ब्रैकेट 4, फंड 5। नोट कर लो। So, for an absorption spectrum, why is it bright background and dark lines? क्योंकि वो ब्राइट इज द लाइट, डार्क हो जाएगा जब उस लाइट में से कुछ पार्ट तुमने ले लिया। Okay. And for emission, it is dark and then bright lines. हाँ, क्योंकि वहां पे फोटोन निकला। बेसिकली ब्राइटनेस इज फोटोन। तो बहुत सारे फोटोन थे Hmm. तुम्हारे पास ब्राइट, उसमें से तुमने फोटोन ले लिया तो डार्क हो गया उधर, राइट। Hmm. और अगर एमिट किया तो डार्क था ऑलरेडी, वहां पे तुमने फोटोन दिया तो फिर वो ब्राइट हो गया। लाइमन बामर पास्कन ब्रैकेट फंड। डन। संस्कृति लाइमन सीरीज में कहां तक गिरता है? Certain one, बामर में, 2. ब्रैकेट में, Bracket was 4. पास्कन Pascal was 5. 3 No, that was 1. Pascal was 3. एंड फंड इज 5। ओके, ठीक है, Yes. ये हो गया, बस खत्म। Palmer series, a line with the longest wavelength is red and is called H alpha. Next line wavelength. चलो ये वाला सवाल करो। The energy of an electron in the ground state of hydrogen is minus 13.6 eV. Calculate the energy of the photon that would be emitted if electron was to make a transition corresponding to this emission of the first line of the Lyman series of the H atom.
Put the answer on chat. Answer. Only Smera has given an answer till now. बाकियों को क्या हो गया?
Arya wrong. आर्या जो तुमने निकाला वो E2 निकाला है. अब जो एमिशन होएगा वो E1 माइनस E2 रहेगा ना. सिया रॉन्ग. So it will be minus 30.6 plus 3.4, right? नहीं, तो क्या होता है वो उस एनर्जी लेवल से ये एनर्जी लेवल पे आएगा, राइट? तो Yeah. बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है? माइनस 3.4 बड़ा है. Minus 3.4. वहां से क्या गिरेगा तो कितना एनर्जी बचेगा? माइनस 3.4 माइनस ऑफ माइनस 13.6. Oh. Yeah, okay. Electron volt is the unit. Sanskriti Kopkar, why have you not sent an answer yet? I asked you, Sanskriti Kopkar, why have you not sent an answer yet? सॉल्व कर रहे थे. हाँ? सॉल्व कर रहे थे. Arya, give your answer. I got 10.2. 0.2 और नहीं होएगा. Okay, moving on. In hydrogen atom, the transition takes place from n equals 3 to n equals 2 orbit. Calculate the wavelength of the emitted photon. Will the photon be visible? To which spectral lines will this photon belong? चलो, सबसे पहले तो बताओ कौन सी स्पेक्ट्रल लाइंस पे होंगे ये. Everybody put it on chat. कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज में होगा ये? Smera correct. Arya correct. बताओ भाई. Sanskriti correct. Sia, what happened? Okay, Sia correct. तो ये तो हो गया बामर में होगा बिकॉज n इक्वल टू 2 पे गिर रहा है. कैलकुलेट द वेवलेंथ. फॉर्मूला है हमारे पास, कर लो. 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू r ब्ला ब्ला ब्ला. चलो मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ अभी, उसको बाद में प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग, मैं भेजूंगा तो, है ना. 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. तो यहाँ पे इसको वैल्यू डाली तुमने तो आ गया 6563 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, विच इज इन द रेड पार्ट. ओके. De Broglie's comment on Bohr's second postulate. According to De Broglie, a stationary orbit is that which contains an integral number of De Broglie standing waves associated with the revolving electron. For an electron revolving in nth circular orbit of radius Rn, the total distance covered equals to circumference of the orbit, which is 2 pi Rn. For the permissible orbit, 2 pi Rn equals to n lambda. So according to De Broglie wavelength, lambda equals to h upon mvn. H upon mvn, okay. Where vn is the speed of the electron revolving in nth orbit. 2 pi rn equals to nh upon mvn. mvr equals to nh upon 2 pi nh upon 2 pi, right? That is angular momentum of the electron revolving in nth orbit must be an integral multiple of h upon 2 pi, which is what the Bohr's postulate also is. So he was fine with it. Cool.
डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन मोमेंटम, ये था डी ब्रॉगली वेवलेंथ, राइट। तो ये हो सकता है वो कहें कि भाई बताओ कि दोनों तरफ से सेम आया, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम पी, और बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट में था जो भी था अपना, है ना, एन एच अपॉन 2 पाई। ओके डन। लिमिटेशंस What? ऑफ, I didn't understand. व्हाट डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? What you said about de Broglie and Bohr's second postulate. तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है? H by mv, mu, mu. नहीं, एच mv अपॉन or mu? मोमेंटम, एच अपॉन Yeah. मोमेंटम एम वी होगा ना, Sorry. और एम वी एम यू कुछ भी, Sorry. उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। हाँ. यहाँ पे इन्होंने क्या किया देख लेते, चलो देखो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी एन, कूल कूल, Yeah. ओके। अभी लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर एन अपॉन एन लिख सकते हैं यहाँ पे, एच लैम्डा की जगह 2 पाई आर एन अपॉन एन लिख सकते थे, Yeah. तो 2 पाई Oh, आर but एन you अपॉन took एन it इक्वल्स टू that एच side. अपॉन एम वी एन, तो एन उधर गया तो हो गया 2 पाई आर एन इक्वल्स टू एन एच अपॉन एम वी एन। Yeah. एम वी ऊपर ले जाओ, 2 पाई नीचे ले आओ, तो हो जाएगा एम वी एन आर एन इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। Yeah. एम वी आर इज व्हाट, इज द एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज And yeah, angular momentum. Yeah. तो एंगुलर मोमेंटम हैज कम आउट टू बी एन इनटू एच अपॉन 2 पाई, Yeah. which is what Bohr's postulate also says. Yeah. So that's how they Okay. prove that inconsistency with de Broglie wavelengths. ठीक है, cool. Okay. Limitations of Bohr's model. Limitation of Bohr's model. The model is applicable only to a simple atom like hydrogen having Z equals to 1. This theory fails if Z is greater than 1. It does not explain the fine structure of spectral lines in H atom. This model does not explain why orbits of electrons are taken as circular, whereas elliptical orbits are also possible. Orbital picture of electron in an atom. Blah blah. With the development of quantum mechanics, we have a better nothing here. यहाँ पे हो गया चैप्टर खत्म। अब इसको करो तुम लोग प्रैक्टिस। अभी दूसरा चैप्टर चालू करूँ कि ये प्रैक्टिस कर लोगे? अभी तुम्हारे पास है 1.25 घंटे। Can we do a few questions before switching to another? So then let's do some questions only. Let's not do another chapter. Let's just do some questions. Okay. इधर ही है ये। तो मेरे साथ करोगे कि खुद करोगे? मेरे साथ कुछ क्वेश्चंस The करो। easier ones we'll do with you. Otherwise, we'll solve it. नहीं देखो, मेरे साथ करने थे, बस ये इशू है कि तुम अपनी पेस पे नहीं कर सकते ना फिर। इफ यू आर एबल टू डू द क्वेश्चंस फास्ट देन यू हैव टू वेट फॉर समवन एल्स। तो मेरे साथ कुछ क्वेश्चंस कर लो, फिर कर लो। वैसे हालांकि ये चैप्टर बहुत आसान है, इसमें ज्यादा है नहीं। चलो कुछ न्यूमेरिकल पकड़ते हैं। इफ द ऑर्बिटल, ये करो चलो, इफ द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इज ब्ला, कंप्यूट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। चलो ये देख के बन रहा है। 13.6 हो सकता है क्या? 15.3 हो सकता है क्या? हाँ बताओ। आर्या, No. अच्छा आर्या टेल मी, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा?
नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव होगा भाई। काइनेटिक और एनर्जी अभी तो बोला नेगेटिव ऑफ। it's negative of total energy, which in turn is negative. Total energy is negative ओके and या kinetic energy is negative of total energy. तो या सो पॉजिटिव। ग्राउंड स्टेट पे उसकी एनर्जी होती है -13.6, वहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी +13.6, लेकिन ये ग्राउंड स्टेट है क्या? सो 15.3 भी पॉजिटिव। हाँ ए नो देन। हाँ, बट कैलकुलेट करके देखो पहले। क्योंकि अगर ऑप्शंस नहीं दिए होंगे तो कैसे निकालोगे, तो चलो कैलकुलेट करके निकालो फटाफट। डन। अभी तक नहीं हुआ? इसका पहले मुझे लेवल क्या होगा ये बताओ, इसका क्वांटम नंबर क्या होगा? 1 1 1 ओनली ना हाइड्रोजन। 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है ना उसका। ओ आई थॉट यू मेंट लाइक एन। अगली यहाँ 1 ही होएगा ना, बिकॉज 0.53 एंगस्ट्रॉम के पास में ही है वैसे। या तो फिर तो डायरेक्टली हो गया ना, अगर n इज 1 तो ये 13.6 ही होएगा ना फिर। हाँ नहीं, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गिविंग। या So I'm getting 15. Yeah, I got that. या इवन आई नॉट। 13.6 होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम के लिए, तो यहाँ पे वो 0.53 से थोड़ा अलग था तो 15.3 होता। बट ये पूरा इतना कैलकुलेट करना पड़ता, वो हमको डायरेक्टली मिल गया बाय रिमूविंग द ऑप्शंस। चलो नेक्स्ट। संस्कृति को कर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज। अरे किधर देख रही हो भाई, तेरी करो रिस्पॉन्ड, इतनी देर से तो मैं पढ़ा रहा हूँ। H/2 हाँ ओके कूल ऑलराइट। और क्या, द सेट ऑफ एटम्स इन एन एक्साइटेड स्टेट डीकेज। चलो ये करो, in fund series ratio of maximum to minimum wavelength of emitted spectral lines is।
Maximum you'll take infinity, right? मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा देख लो एक बार. बट एक में तुम क्लोजेस्ट लोगे और दूसरे में इंफिनिटी से लोगे. So maximum is infinity or not? हाँ, Or is minimum infinity or maximum infinity? what do you think? देखो It has to इंफिनिटी be maximum wavelength, na? तो इंफिनिटी से जब आएगा तो उसके बाद मैक्सिमम एनर्जी होगी, राइट? मैक्सिमम एनर्जी मतलब मिनिमम वेवलेंथ. Energy at infinity is 0, right? हाँ, So means it's सबसे ज्यादा. अरे हमको एनर्जी एट इंफिनिटी थोड़ी देखना, हमको तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन इंफिनिटी एंड दिस. फंड सीरीज में कहाँ तक होता है, कौन से लेवल तक होता है? 5. तो हमको इंफिनिटी से 5 में ज्यादा एनर्जी है कि 6 से 5 में ज्यादा एनर्जी? Infinity से 5. तो इंफिनिटी से 5 में ज्यादा एनर्जी है तो कम वेवलेंथ होगा, बिकॉज एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू विच इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा. Oh. Arya has given an answer, good. Sia has given an answer, good. और Sia has given an answer, Arya has given an answer, बाकी लोग का क्या हुआ? So can you do the solving once? How are you solving it? Like one would be the 1 by 5 square minus 1 by infinity, हाँ, and the other would be 1 by 5 square minus 1 by 6 square. करेक्ट. तो कितना आया? But I'm getting stuck in the calculation somewhere. तो 1 by 5 square minus 1 by 6 square कितना हुआ? . 11 by 900.
11 में 900 और उसमें दूसरे वाले में दूसरे वाले में it's 1 by 5 square only ना, because 1 by infinity तो उसको was- कर दो डिवाइड, तो क्या बचेगा? 25 कट गया, What? उसको डिवाइड कर दो ना। See this. Maximum wavelength will be given for minimum energy, which is 1 by 5 square minus 1 by 6 square. Minimum wavelength will be given by highest energy, which is 1 by 5 square minus 1 infinity. इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा? ये बन जाएगा 36 minus 25, which is 11 by 36 into 25. ठीक है, 11 by 36 into 25, और ये बन जाएगा 1/25. 25 कट जाएगा, बचेगा 36/11. Yeah, got it. ठीक है, ऑलराइट, लेस देन अ मिनट रिमेनिंग फॉर जूम. तो ठीक है, मैं इसको तुम लोग को भेजता हूँ. डू प्रैक्टिस टुडे. प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा. नेक्स्ट क्लास में न्यूक्लियर खत्म करते हैं. ओके, ऑलराइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर. और कुछ डाउट्स हो तो पूछ लेना ग्रुप पे. ओके, बाय. Thank you. Thank you.